Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to start our reading text 4 of Intermediate English, Pakistan and the Modern World. It is actually a text of a speech that is delivered by Liaquat Ali Khan in 1950 when he visited United States of America. Liaquat Ali Khan was born on 1st October 1895 and died on 16th October 1951. He was the right hand man of Quaid-e-Azam. Right hand man means a very important person जिस पर कोई लीडर बहुत ज़्यादा जो है रिलाई करता है, बहुत ज़्यादा जो है मशवरे लेता है उसके और कंसल्टेशन उसके साथ बहुत ज़्यादा करता है. तो he was the right hand man of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah during the crucial years of the Muslim struggle for the creation of Pakistan. Crucial years, इंतहाई अहम साल जो थे. Crucial means extremely important years of Muslim struggle for Pakistan. In 1947, he became the first Prime Minister of the Muslim homeland for which he had worked so hard. A great statesman with a deep compassion for human suffering and a fine orator of sincerity and eloquence, he steered the country with immense ability throughout his early years of trial and tribulation. स्टेट्समैन से यहाँ पर मुराद है रहनुमा. स्टेट्समैन को आप जो है सियासतदानों की जहन सेंस में नहीं लेंगे, बल्कि स्टेट्समैन जो होते हैं वो ज़रा सियासतदानों से ऊपर के लेवल के जो हैं लोग होते हैं. सो स्टेट्समैन मीन्स एक बड़े अजीम रहनुमा with a deep compassion for human suffering. Deep compassion means गहरी हमदर्दी रखते थे वो इंसानी परेशानियों के हवाले से. and a fine orator means तकरीर करने वाला. so he was a great orator. एक बड़ी ज़बरदस्त जो थे वो मुकर्रर थे. उनकी फ़न खिताबत जो थी वो बहुत मशहूर थी पूरे इंडिया में. and he was a great orator of sincerity, यानी कि एक सच्चाई होती थी उनकी बातों में. इलोक्वेंस एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें आप बहुत ही खूबसूरती और वजाहत से अपनी बात दूसरों के सामने पेश करते हैं. सो ही वाज अ ओरेटर ऑफ सिंसियरिटी एंड इलोक्वेंस. ही स्टीयर्ड द कंट्री विद इमेंस एबिलिटी. स्टीयर्ड मींस चलाना, रहनुमाई करना. सो ही स्टीयर्ड द कंट्री विद इमेंस एबिलिटी. इमेंस मींस जबरदस्त सलाहियतों के साथ जो है उसने मुल्क को जो है लेकर चले. थ्रू हिज अर्ली years of trial and tribulation. The early years of trial and tribulation. Trial means मुश्किलात का दौर, आजमाइशों का दौर, और ट्रिबुलेशन का मतलब ये होता है हंगामे. सो it was the time, the early years of Pakistan were very difficult. You know that the Muhajireens were coming from India, and Pakistan had to arrange for their shelter, for their health, for their rozgar, for all the different things. So it was a very difficult time for Pakistan. During those early times, he steered the country with immense ability, जो कि पता लगता है कि वो कितनी सलाहियतों के मालिक इंसान थे. एजुकेटेड एट द मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द इनर टेम्पल लंदन. So these are the great institutions where he got education. So he practiced law in India before dedicating himself completely to the Muslim cause. In the beginning he practiced law and he was a very successful lawyer, but later on he dedicate का मतलब वक्फ कर दी उन्होंने अपनी जिंदगी मुसलमानों के मकसद के लिए. As honorary general secretary of the All India Muslim League, he worked tirelessly and selflessly for more than a decade. For more than a decade, 10 साल से ज़्यादा जो है वो ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जो कि उस वक्त मुसलमानों की नुमाइंदा जमात हुआ करती थी. एंड ही वर्कड टायरलेसली एंड सेल्फलेसली. सेल्फलेसली मींस बगैर किसी गर्ज के, और अनथक मेहनत उन्होंने की, मुसलसल उन्होंने मेहनत की. फॉर मोर देन अ डेकेड बिफोर इंडिपेंडेंस. पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द टेक्स्ट ऑफ ए स्पीच ही डिलीवर्ड टू एक्नॉलेज द कन्फरमेंट ऑफ एन ऑनरेरी डिग्री अपॉन हिमसेल्फ बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास. कन्फरमेंट का मतलब अता करना. सो he acknowledged the conferment of an honorary degree. Acknowledge means शुक्रिया का इजहार करना, तस्लीम करना कि आपने बड़ी मेहरबानी की है मुझ पर. So he acknowledged the conferment of an honorary degree that was conferred upon him by
बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास, अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने उनको एक एजाजी डिग्री दी थी और उस पर जो है उन्होंने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो स्पीच की थी, ये टेक्स्ट जो है वो स्पीच है असल में। इट इज वन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्पीचेस, यानी कि ये उन तकरीरों के सिलसिले में से एक तकरीर है दैट ही मेड ड्यूरिंग हिज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950, स्पीचेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडमिरेबल exposition of how Pakistan was born and how she had fared during the first difficult years of an independence. Exposition का मतलब इजहार करना कि ये स्पीचेस जो हैं वो मुश्तमिल हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है किस चीज पर मुश्तमिल होना, तो ये किस चीज पर मुश्तमिल है? They are which constituted an admirable exposition, कि शानदार जो है इजहार पर मुश्तमिल है कि कैसे पाकिस्तान जो है वजूद में आया था और कैसे पाकिस्तान गुजरा। फेयर का मतलब है यहां पर गुजरना। सो कैसे पाकिस्तान गुजरा, किन हालात से पाकिस्तान गुजरा ड्यूरिंग द फर्स्ट डिफिकल्ट इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इन द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, फॉलोइंग ईयर मींस अगले साल। तो ऑन 16 अक्टूबर शहीद मिल्लत, तो ये शहीद मिल्लत जो हैं इनको असैसिनेट कर दिया गया। शहीद मिल्लत, टू गिव हिम द नेम बाय विच ही इज रिमेंबर्ड एंड वेनरेटेड, कि वो नाम जिससे कि उनको आज याद किया जाता है और उनको उनका अदब किया जाता है। वेनरेट का मतलब अदब करना। वाज असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक एट अ पब्लिक मीटिंग इन रावलपिंडी, एक अवामी जलसे में जो है उनको जो है एक फैनेटिक ने, यानी कि एक कट्टर कोई मुतासिब इंसान ने जो है, किसी मुतासिब इंसान ने उनको जो है वहां पर असैसिनेट कर दिया था, शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था उनको। सो दिस स्पीच विद इट्स विजडम एंड डिग्निटी टेस्टिफाइज इलोक्वेंटली टू द नेशंस लॉस, और ये स्पीच जो है ये टेस्टिफाई करती है। टेस्टिफाई का मतलब तस्दीक करती है कि कितने बड़े इंसान को जो है कौम ने उस वक्त खोया। सो इट टेस्टिफाइज इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली मींस बहुत ही वजाहत से, बहुत ही खूबसूरती से इट टेस्टिफाइज द नेशंस लॉज। और कम्युनिकेशन की ये स्किल्स ही जो होती हैं किसी बड़े लीडर की जो है क्वालिटी होती हैं, जो कि लियाकत अली खान के पास अल्लाह ताला ने जो है जबरदस्त तरीके से उनको अता की हुई थी। अब यहां पर जो है वो अपनी स्पीच को शुरू कर रहे हैं और कहते हैं कि इन कन्फरिंग अ डिग्री अपॉन मी, यू एंड द कंट्री ऑफ कैंसास सिटी हैव bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank you. In conferring a degree upon me, कि ये डिग्री जो आपने मुझे अता की है, you and the University of Kansas City have bestowed upon me. Bestow का मतलब भी अता करना, कि आपने मुझे जो है मुझे दिया है, मुझे अता फरमाया है, an honor for which I cannot adequately thank you. मुझे और मेरे मुल्क को जो है आपने वो इज्जत दी है जो इसके लिए मैं आपका काफी तौर पर शुक्र अदा नहीं करता, यानी कि मुकम्मल तौर पर मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। फॉर माई एड्रेस टुडे आई हैव एडवाइजर्डली चूजन द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। फॉर माई एड्रेस टुडे, एड्रेस मींस खिताब, आज की जो मेरी तकरीर है, फॉर दिस आई हैव advisedly chosen the subject of Pakistan in the modern world. Advisedly means बहुत ही सोच समझकर I have selected this topic of Pakistan in the modern world. I have done this for two reasons. In the first place, I am conscious of the fact that you have been kind enough to select me as the recipient of your recognition in order to do honor to my country rather than to reward me for my inadequate merits. So in the first place, I am conscious of the fact, I am conscious of the conscious means वाकिफ होना, आगाह होना, कि मैं इस हकीकत से अच्छी तरह आगाह हूं that you have been kind enough, कि ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, that you have selected me as the recipient of your recognition, कि आपने मुझे जो है इस recognition का या ये जो डिग्री मुझे अता की है इसके लिए जो है आपने मुझे सिलेक्ट किया है as a recipient, लेने वाला, in order to do honor to my country, ताकि आप मेरे मुल्क को इज्जत दे सकें, rather than to reward me for my inadequate merits, बजाय इसके कि आप मुझे कोई रिवॉर्ड दें, मुझे कोई तोहफा दें, for my inadequate merits. Inadequate means नाकाफी मेरी सलाहियतें, मैं इतनी सलाहियतों का मालिक नहीं हूं कि आप मुझे जो है इतनी इज्जत दें। सो लिहाजा पहली बात तो यह कि it is fitting therefore that in expressing gratitude for your generosity, my country more than myself should speak to you. So it is fitting के मुनासिब ये है कि
therefore that in expressing gratitude के जो शुक्रिया का इजहार है उसमें जो है आपकी जो जेनरोसिटी, आपकी मेहरबानी के लिए जो शुक्रिया का इजहार है, my country more than myself should speak to you, कि उसमें जो है मेरा मुल्क आपसे ज्यादा बात करे बजाय इसके कि मैं आपसे बात करूं on this occasion. And in the second place, we live today in an era of widening horizons. Widening horizons means era means दौर, और widen means फैलते हुए, वसी होते हुए. होराइजन का मतलब वैसे तो होता है उफक, वो जगह जहां पर जमीन और आसमान आपस में मिलते हुए नजर आते हैं, उसको होराइजन कहा जाता है. लेकिन यहां पर होराइजन से मुराद है इम्कानात. सो दिस इज एन एरा ऑफ वाइडनिंग होराइजन्स, के ये एक ऐसा दौर है जबकि नए नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं, नई नई पॉसिबिलिटीज दुनिया में जो है सामने आ रही हैं, नए नए वाकयात हो रहे हैं दुनिया के अंदर. सो इट इज एन एरा ऑफ वाइडनिंग होराइजन्स. इट इज इन अ सेंस एन एरा in which new countries are being discovered. So more than 4 centuries ago, कि आज से कोई 400 साल पहले, the explorers, explorer means सयाह, कि वो सयाह जो कि इंडिया का समुद्र का रास्ता तलाश करना चाहते थे, तो वो वॉयज करते हुए, वॉयज का मतलब समुद्री सफर करना, तो वो समुद्री सफर करते हुए बजाय इसके कि हमारा मुल्क तलाश करते, उन्होंने आपका मुल्क तलाश कर लिया. एक स्पेनिश एक्सप्लोरर कोलंबस, जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो उसका मकसद असल में इंडिया का रास्ता तलाश करना था, समुद्री रास्ता इंडिया का. जमीनी रास्ता तो वो सब जानते थे, लेकिन कोई शॉर्टकट इंडिया का समुद्र के जरिए तलाश करना उसका बड़ा मकसद था. लेकिन वो अपनी इस कोशिश में बजाय इसके कि इंडिया तलाश करता, अमेरिका तक पहुंच गया. तो इस तरीके से अमेरिका 1492 में डिस्कवर हुआ था. तो कह रहा है कि यूरोप के एक्सप्लोरर्स फ्रॉम यूरोप वॉयजिंग आउट टू डिस्कवर द कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच आई हेल, कि वो कॉन्टिनेंट, कि वो बर्रे आजम जिससे कि मैं आया हूं, हेल का मतलब आना, डिस्कवरिंग योर ग्रेट लैंड, तो उन्होंने जो है दे डिस्कवर्ड योर ग्रेट लैंड, तो उन्होंने आपका जो है मुल्क जो उन्होंने डिस्कवर किया. यू विद योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर पॉइज्ड इन अ मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन यू कैन नॉट बट कैरी दैट वॉयज फॉरवर्ड. एंड नाउ, उस वक्त तो उन्होंने आपका मुल्क तलाश किया और उन्होंने अपना जो है तलाश का सफर जो है वो यहां तक पहुंचाया, और अब आप जो हैं एक तारीख के ऐसे मोड़ पे खड़े हुए हैं, एक ऐसे नुक्ते पर खड़े हुए हैं. यू आर पॉइज्ड इन अ मोमेंट ऑफ हिस्ट्री. पॉइज का मतलब ठहरे हुए होना, एक ऐसे तारीखी लम्हे पर, व्हेन यू कैन नॉट बट कैरी दैट वॉयज फॉरवर्ड, जहां पर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है. यू कैन नॉट, कि आपके पास और कोई यानी कि रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप इस वॉयज को मजीद आगे लेकर जाएं. जैसे उन्होंने ये आपका मुल्क तलाश किया था, वैसे ही आप भी नए मुल्क तलाश करें. और इससे मुराद उसकी यही है कि जो दुनिया में नए मुल्क बन रहे हैं, आप इनको समझें, उनके कल्चर को समझें, उनकी हिस्ट्री को समझें कि वो कैसे वजूद में आए थे, और जो है ताकि आपके उनके साथ रिलेशंस डेवलप करने में आपको आसानी हो और एक अच्छा दोस्ती वाला माहौल आपका उनके साथ जो है पैदा हो जाए. इफ आई मे बी परमिटेड टू से, कहता है कि अगर मुझे ये कहने की इजाजत दी जाए, इफ आई मे बी परमिटेड टू से दैट डिस्कवरी ऑफ एशिया हैज नॉट येट बीन accomplished, कि अगर मुझे ये कहने की इजाजत दी जाए तो हकीकत यह है कि दैट द डिस्कवरी ऑफ एशिया हैज नॉट बीन accomplished, कि वो सफर जो कि आज से 400 साल पहले यूरोपियंस ने शुरू किया था हमारे मुल्क को जो है डिस्कवर करने के लिए, हमारे कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के लिए, वो अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हुआ है. इट इज नॉट accomplished yet. In fact, it has only just begun, बल्कि ये तो हकीकत में अभी शुरू हुआ है. So in speaking to you today, I trust, कि मुझे यकीन है, I shall be of some assistance, कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूंगा in discovering that part of Asia which I know, कि एशिया का वो हिस्सा जो कि मैं जानता हूं, and which is very dear to me, यानी कि मैं पाकिस्तान को जो है आपके सामने डिस्कवर करने में, एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करूंगा. And in pointing out some of the links that destiny is forging between your people and ours, that I will point out, कि मैं वाज़े करूंगा कि वो कौन से रिश्ते हैं जो कि तकदीर जो है वो बना रही है. Forge का मतलब है यहां पर बनाना. So that destiny is forging between your people and ours.